Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is conservation of plants and animals. Let's learn about biodiversity in India, threats to biodiversity, flora and fauna, conservation of forest, causes of deforestation, wildlife conservation, migration. In earlier classes, you have read that humans use a number of natural resources for their survival. However, as human population has been increasing at a high rate, the natural resources are also being used in a greater quantity than ever before. With recent advances in science and technology, people now have a higher standard of living. As a result, there is a far greater demand of the natural रिसोर्सेज। तो अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, इसकी वजह से जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज, उनका डिमांड भी ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ चुका है। Substances found in nature on earth that can be used by humankind are called natural resources. Air, water, land or soil, minerals, flora, plants, fauna, animals and sun's energy are all नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स को जितनी भी चीज़ें प्रोवाइडेड है, एयर, सनलाइट, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा में आपके प्लांट्स आते हैं, फौना में आपके एनिमल्स आते हैं, सॉइल है, ये सारी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं और ह्यूमन काइंड के बेनिफिट्स के लिए ये ह्यूमंस ने यूज भी करी है। Fact file: India ranks 6th among 12 mega biodiversity countries in the world. It contains 2 out of 13 biodiversity hotspots of the world: North, East India and the Western Ghats. These areas are very rich in biodiversity. तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 6th। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से लेकर पूरे लैंड मास में आपको अलग अलग रॉक्स दिखेंगे, माउंटेन रेंजेस दिखेंगे जो इनकी बायोडाइवर्सिटी को अकाउंट करते हैं। It is for this reason that the natural resources must be conserved so that there will be enough resources available for the future generations. और इन सब का यूज हमें इस तरीके से करना है, सस्टेनेबल तरीके से, कि आगे आने वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके। It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of these resources completely. It only means that we have to use the resources wisely and judicially. Conservation is the wise and judicious use of resources. The overuse of wastage of resources would lead to imbalances among the various components of nature. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिसोर्सेज बिल्कुल ही यूज करना बंद कर देना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको जो रिसोर्सेज नेचर ने दिए हैं आपको उसका इस्तेमाल वाइजली करना है, जुडिशियली करना है, सस्टेनेबली करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहे। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया: इंडिया हैज अ रिच एंड वेरिड बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स, कोस्टल वेटलैंड्स एंड alpine vegetation. More than 50% of total species of plants and animals found on the earth are present in India. Therefore, India is one of the mega biodiversity nation. It has just 2.4% of world's land area but contributes over 8% to the global biodiversity. तो इंडिया जो है वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। आपको यहाँ पे डेजर्ट्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, माउंटेन रेंजेस दिखेगी, ग्रीन माउंटेन्स दिखेंगे, स्नो फेड माउंटेन्स दिखेंगे। इतना वास्ट इनका बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का। लैंड मास पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी में भी रैंकिंग दी गई है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज हैव बीन डेजिग्नेटेड एज 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 25 हॉटस्पॉट्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज। जो ईस्टर्न माउंटेन रीजन्स है, वेस्टर्न घाट्स है, उनको जो टोटल आपके पूरे वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट्स है उसमें से 2 हॉटस्पॉट्स आपके इंडिया में प्रेजेंट हैं। Do you know mega biodiversity nations are very rich in plant and animal species? India, Brazil, Colombia, Mexico, Indonesia, Philippines, China and Australia are mega biodiversity nations. Hotspots are those specific regions of mega biodiversity nation which have large number of endemic species. 25 hotspots of biodiversity have been identified all over the world, out of which 2 are located in our country. तो मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस वो होते हैं जहां पे
प्लांट्स बहुत ज़्यादा एबंडेंस में होते हैं, आपको अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी प्लांट्स की और एनिमल्स की यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्हीं बायोडाइवर्सिटी नेशंस में, मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस में हॉटस्पॉट रीजन्स होते हैं जहां पे एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में टोटल 25 हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन उन 25 हॉटस्पॉट में से 2 हॉटस्पॉट्स हमारी कंट्री इंडिया में पाए जाते हैं। Threats to biodiversity. Biodiversity benefits the economy, society, and environment. You have studied how man is dependent on the living world for his survival. Biodiversity provides our economy and society with medicine, food, clothing, and shelter. इसी biodiversity पे जो human life है वो अपने survival के लिए dependent है। Shelter, food, clothing, medicines, ये सारी आपको biodiversity की वजह से ही मिलती हैं। However, due to a steady rise in the population, the demands and needs have been steadily rising, resulting in the destruction of habitats, degradation of the environment, leading to loss of biodiversity. Due to human actions, species and ecosystems are threatened with destruction. And because population इस हद तक बढ़ रहा है कि ये सारी बायोडाइवर्सिटी अब इतनी ज़्यादा यूज होने लगी है कि ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। जितनी भी प्लांटेशंस हैं, फ्लोरा है, फौना है, एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं, ये सारे धीरे धीरे राइज इन पॉपुलेशन की वजह से ही अपना इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है उसे खो रही है। Extinction and death of a species is a natural process of selection, but with human interference, this natural event is being accelerated. There are a number of threats to biodiversity that are directly related to human behavior. जो natural death का process होता है वो common है, लेकिन human interference की वजह से ये जो species हैं, ये इनके death में acceleration आ गया है, यानी कि तेजी से ये मरते जा रहे हैं। These include the following. Number 1, population growth and consumption of resources. Number 2, deforestation. Number 3, habitat loss. Number 4, environmental pollution. Number 5, invasion of non-native species. Number 6, climatic changes. Number 7, overhunting, commercial exploitation. तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, मर रही हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन बिहेवियर से है। ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, यानी ह्यूमंस अपने फायदे के लिए जितना भी फॉरेस्ट लैंड होता है उन्हें काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसकी वजह से ये जो स्पीशीज है ये अपना हैबिटेट यानी कि अपना घर खो देती हैं, खाना नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही हैं। Population growth and consumption of resources. The loss of species and ecosystems can be attributed to the growing human population. More than half of the forests have been lost with increase in human population. The population of Earth has reached to 6 billion and is increasing exponentially. There is an unprecedented demand on our ecosystems for fresh water, food, space, and fuel. Excessive demand and overconsumption is thus depleting the biological and natural resources of the earth. जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियली यानी कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं बचेंगे। Deforestation. Forests play an important role in conservation of biodiversity. They help maintain the oxygen supply and provide the fresh air that we breathe. They maintain a balance of gases and nutrients in nature, bind soil, maintain and recharge groundwater. They also regulate temperature and humidity. They prevent soil erosion and degradation of the physical environment and provide a habitat for innumerable plants and एनिमल्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से सॉइल एक जगह पे बाइंड रहता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, अलग अलग टाइप की कैलामिटीज आने से बच जाती हैं, मॉइस्चर जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, और उसके अलावा फॉरेस्ट में ही अलग अलग टाइप के प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज भी रहते हैं। With increase in demand for space and wood for the growing population, large portions of the forest are already cleared. Deforestation is a major threat to the survival of organisms.
The consequences of deforestation are enormous. Deforestation results in the increase in carbon dioxide levels in the environment. Increased level of carbon dioxide leads to global warming as carbon dioxide traps the heat of the solar radiations. Deforestation is leading to unprecedented changes in air and water temperature, water levels and the timing of seasons. Deforestation हो रहा है क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्पेस ज्यादा चाहिए, फर्नीचर के लिए वुड ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से अभी भी करंटली बहुत मेजर ऐसा पोर्शन है फॉरेस्ट का जिसको काट दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जिसकी वजह से पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ कम होंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, गैसेस कम होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा रिलीज होगी तो वो जितनी भी सोलर रेडिएशंस होती हैं उसको ट्रैप कर लेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आएंगे। जो आपके सीजनल चेंजेस होते हैं, जो यूजुअल तरीके से होते थे वैसे नहीं हो रहे हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये सारे टेम्परेचर सीजनल चेंजेस डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही देखे गए हैं। Habitat loss. All species have specific food and habitat needs. The destruction of previously intact ecosystem results in a loss of habitat for many species and breaks down an ecosystem's ability to function. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनको एक हैबिटेट में रहने की आदत हो जाती है, इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है, फूड हैबिट्स उनकी जनरेट हो जाती हैं। अगर आप वही एरिया अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खत्म कर देंगे, उनका घर भी छिनेगा, इकोसिस्टम का जो नेचुरल तरीका है फंक्शन करने का वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। Environmental pollution. Pollution from chemical contaminants poses a further threat to species and ecosystems. The environmental pollution caused by the use of pesticides and chemicals, dumping of wastes and emissions from factories and automobiles affects the living population. For example, pollution of water bodies resulting from the dumping of waste and chemical fertilizers into them causes depletion of oxygen in water and adversely affects the biodiversity. इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रीज से बहुत सारे ऐसी गैसेस निकलती हैं, एमिशंस होती हैं जो वाटर बॉडीज को भी खराब करती हैं। इसके अलावा जो आप वेस्ट प्रोडक्ट्स कहीं भी फेंक देते हैं वो फर्दर आपके पानी में जाके मिल जाते हैं, आपके पानी को कंटामिनेट कर देते हैं, विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है, वहां से एमिशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन से एक्वेटिक लाइफ जो होती है, फ्लोरा की, फौना की, वो भी अफेक्ट हो जाती है। Invasion of non-native species. Invasion of non-native species is an important and often overlooked cause of extinctions. Exotic species are new species entering a geographical region. They cause disappearance of native species due to changed biotic interactions. जो non-native species होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो बहुत टाइम तक लोग रह रहे होते हैं, वहां के वो नेटिव बन जाते हैं। जब non-native species वहां पे इंटरफेयर करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो होते हैं वो वहां से गायब होने लग जाते हैं। ये भी एक रीजन है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के काफी सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। Climatic changes. A changing global climate threatens species and ecosystems. The distribution of species is largely determined by climate, as is the distribution of ecosystems and plant vegetation zones, biomes. Climatic changes may simply shift these distributions, but for a number of reasons, plants and animals may not be able to adjust. The pace of climatic changes almost certainly will be more rapid than the ability of most of the organisms to migrate. क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी डिफॉरेस्टेशन होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से भी काफी सारे एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है। जो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे एरियाज में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो सरवाइव कर लेते हैं, बट जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते या माइग्रेट करने के बाद भी अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। Overhunting. Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales and many African large mammals for years. Most extinction over the past several hundred years are mainly due to overhunting for food, fashion and profit. Commercial hunting, both legal and illegal poaching, is the principal threat. जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज्यादा हंटिंग करते हैं, लीगल तरीके से भी और इलीगल। जो इलीगल हंटिंग होती है उसे पोचिंग कहा जाता है। ये पर्सनल यूज के लिए करते हैं, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए या फिर पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ये भी एक रीजन है कि बहुत सारी स्पीशीज अभी फेस ऑफ द अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं।
Need for conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity is essential because biodiversity maintains balance in nature or balance in the ecosystem. Wildlife, animals and plants provide a variety of commodities. Wildlife is needed for breeding programs in agriculture, horticulture, sericulture, apiculture, etc. तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से आपको फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, फर्नीचर मिलता है, अलग अलग टाइप की आपकी शेल्टर की रिक्वायरमेंट्स भी यही बायोडाइवर्सिटी कवर करता है. खत्म हो जाएगा तो आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी. इसके अलावा सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए आपको जितनी भी एनिमल्स की जरूरत होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है, वो आपको बायोडाइवर्सिटी ही प्रोड्यूस करती है. बायोडाइवर्सिटी अगर खत्म हो जाएगी तो इनमें से आपको कोई भी चीज करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा. Human beings are a part of nature and all the components of nature are interdependent. Any damage to its biodiversity will threaten the whole support system and will be a threat to human existence. Therefore, biodiversity needs to be conserved. जो ह्यूमंस हैं हम सब भी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के उनको भी कंजर्व करना जरूरी है. क्योंकि अगर ये बाकी सारी चीजें, आपका फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, एनिमल्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो ह्यूमंस का सर्वाइव करना भी अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा. Flora and fauna. The environmental and climatic conditions are different in different habitats and so the plants and animal species. In forests, variety of vegetation, large and tall trees and variety of animals are found. Grasslands are generally covered with grasses and animals such as giraffe, zebra, deer, elephants, gazelle and lions. Deserts are hot and dry areas and receive very little rainfall. They are inhabited by organisms like camels, rats, snakes and cacti. Thus, we see that plants and animals are specific to the particular habitat or area. The plants and animals found in a particular habitat or area are known as flora and fauna, respectively of that habitat or area. The flora and fauna of a particular region together forms the biodiversity of the region. जितना भी flora यानी कि आपका plants वाला section होता है, fauna यानी कि animals. अलग अलग regions में आपको अलग अलग टाइप के plants दिखेंगे, flowers दिखेंगे और एनिमल्स भी दिखेंगे. जैसे आपको जो आर्कटिक रीजन्स होते हैं वहां पे आपको पोलर बेयर्स दिखाई देंगे, डेजर्ट्स में आपको कैमल्स दिखाई देंगे. यूजुअली आपको जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पे आपको ज़ेब्राज, एलिफेंट्स, ये सारी चीजें दिखाई देंगी. तो एक पर्टिकुलर रीजन का जो फ्लोरा एंड फौना होता है वो वहीं के रीजन की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है. एक्टिविटी 1. Aim to identify the flora and fauna of the local area. Materials required: a notebook, pencil, pen, etc. Procedure: 1. Visit a local area with diversity of plants and animals. Number 2. Note down the names of plants and animal species in separate sheets. Number 3. Take the help of your teacher to identify the plant or animal species. तो आपको अगर फ्लोरा एंड फौना आइडेंटिफाई करना है एक लोकल रीजन का, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, अपने आसपास किसी लोकल एरिया में चले जाइए, वहां के जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स के नाम लिखिए और अपने टीचर की मदद से उनकी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको लिख दीजिए. Endemic species. Some species of plants and animals are found exclusively in a particular area and do not occur naturally anywhere else. Such species are called endemic species to that state, country or geographical area. तो endemic species वो species होती हैं जो उन regions में जहाँ पे ये पाई जाती हैं, उसके अलावा ये आपको किसी भी और region में पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगी. इसीलिए उस state या उस country या उस region की ये endemic species कहलाई जाती हैं. For example, lion, babbar sher is the endemic to Gir forests in Gujarat. Himalayan weasel is endemic to Himalayan region. Snow leopard is endemic to Himalayan range, found from Kashmir to Sikkim. Wild mango and sal trees form endemic flora of Panchmarchi Biosphere रिजर्व. तो आपके जैसे बब्बर शेर हो गया या आपके गुजरात के गिर जंगलों का एंडेमिक है. उसके अलावा आपका जो हिमालयन विसल है वो हिमालयन रीजन का एंडेमिक है. इसके अलावा साल ट्रीज जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर जो रीजन जहां पे ये उगाए जाते हैं उसके अलावा ये कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे. द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इज ऑफ्टन थ्रेटेंड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज फ्रॉम अदर जियोग्राफिकल एरिया. ऐसे जो आपके अलग अलग एंडेमिक स्पीशीज होती है इनके एग्जिस्टेंस का रीजन है कि अलग अलग जियोग्राफिक रीजन से अलग अलग स्पीशीज को इन रीजन्स में लाया जाता है.
As such, the conservation of biodiversity essentially implies conservation of forests, conservation of wildlife. तो conservation of biodiversity का main जो motto है वो दो है, conservation of wildlife and conservation of forests. Conservation of forest. Forest conservation can be achieved when the habitats of wild animals are conserved. The methods of forest conservation are prevention of number 1, cutting trees. Cutting of trees for agricultural purpose results in loss of habitats of plants and animals. Replanting of trees in a forest is very important part of conservation. In order to conserve forest, the prevention of cutting down of trees is essential. सबसे पहला तरीका आपके फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का यह है कि पेड़ों को कटने से बचाइए. Number 2, excessive grazing. The increasing population of domestic animals has led to overgrazing, which must be controlled to save forests. Population बढ़ गई है, लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग हो जाती है. ज़्यादा जो ये एनिमल्स होते हैं ये खाना खा लेते हैं, प्लांट्स ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट होता जा रहा है. इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है. Number 3, poisoning of biodiversity. Avoiding disposal of wastes from cities, agricultural fields and industries into forests. जितने भी फैक्ट्री से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे फॉरेस्ट में डिस्पोज करना बंद कर दीजिए. Habitat destruction takes place by large-scale man-made alterations such as mining, construction of dams, industries, etc. It should be minimized. फॉरेस्ट के लैंड को कट करके वहां पे डैम्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती है, इनको ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए, इनको मिनिमाइज कर देना चाहिए. A forest fire have destroyed many forests. Care should be taken to prevent forest fires, which are very destructive by making fire lines in forests at regular intervals and gaps. Campfires should not be left smoldering. बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इनको भी प्रिवेंट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. और जो स्मोल्डरिंग फायर होती है, यानी कि अगर आपको फॉरेस्ट में कोई भी ऐसी जलती हुई फायर दिखाई दे रही है, जितना जल्दी हो सके उसको आपको बुझा देना चाहिए, नहीं तो वो पूरी एक चेन या लाइन बना देती है फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर सकती है. Causes of deforestation. Having learnt about the causes for the loss of biodiversity, you can now easily understand the causes of deforestation. See figure. अब आपको पता चल चुका है कि डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकना है, किन किन वजहों से ये होता है, तो आप उनको causes भी आपको पता लगा सकते हैं. Forests are an important natural resource. They are essential for the well-being and survival of mankind. However, due to various human needs, forests are under great threat of being cut. Deforestation. जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमंस के लिए ही है, उन्हीं की लाइफ या सर्वाइवल को सपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट बनाए गए हैं, लेकिन ह्यूमन अपने खुद के पर्सनल नीड्स के लिए फॉरेस्ट को धीरे धीरे कट कर रहा है, खत्म कर रहा है, जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन. Various man-made causes of deforestation are construction of houses and industries, clearing land for agricultural purposes, using wood as fuel, using wood to make paper, furniture and other things. तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ इसलिए कट कर रहा है क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह चाहिए, फर्नीचर ज़्यादा बनाना है उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए, पेपर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, जिसके लिए उनको वुड की ज़रूरत होती है. Deforestation also occurs naturally due to forest fires, earthquakes, severe droughts and floods. Deforestation naturally भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर कभी कभी अकर हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है. Fact file. All over the world, the forest cover has reduced from 7,000 million hectares to 1,900 to 2,370 million hectares by the end of 20th century C. तो पहले के मुकाबले में जो आपका हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर्स के बेसिस पे आपका फॉरेस्ट लैंड था वो घट के बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. 4/5 of the Earth's forests have already been cleared or fragmented. करीबन 4/5 जो फॉरेस्ट लैंड था पूरे अर्थ में उसको क्लियर करवाया जा चुका है. On an average, 16 million hectares of forests are being cleared every year. Around 16 million hectares of forest land हर साल क्लियर कर दिए जाते हैं. Consequences of deforestation.
Deforestation has an adverse effect on biodiversity and needs to be checked immediately. Let us read on to know what happens as a result of deforestation. We already know that plants and animals depend on each other. A number of species of birds and other animals live in a forest. It is their habitat. They depend on each other for food and other things. Destruction of forests has affected the food chain and destroyed the habitats of many living organisms. Animals like lions and tigers have become such reduced in number because the forests in which they live have been destroyed. Remember, this is not the only reason for the reduction in number of these animals. Another reason is their hunting by humans. तो डिफॉरेस्टेशन के एनवायरनमेंट पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. इसका प्राइमरी रीजन ये भी होता है कि जैसे ही आप पेड़ पौधे ये सारे पूरे के पूरे जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, अपना घर बना चुके होते हैं, जैसे ही आप उस एरिया को, उस पैच ऑफ एरिया को पूरा का पूरा साफ कर देते हैं तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनका घर भी छिन जाता है. तो आपके डिफॉरेस्टेशन का ना केवल नॉर्मल एनवायरनमेंट पे असर होता है बल्कि बायोडाइवर्सिटी पे भी उतना ही असर होता है. The level of carbon dioxide in the atmosphere on account of deforestation. You know that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Reduced number of trees require lesser carbon dioxide. So the level of this gas has gone up in the atmosphere, resulting in global warming. फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स का ही एक प्रोसेस होता है अपना खाना बनाने के लिए, उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है. जैसे जैसे आप इन पेड़ों को काटते जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है वो भी कम हो जाता है. अब प्लांट्स अगर इस गैस को अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो ये गैस जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, प्रेजेंट है, उसका यूज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. गैस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है. डू यू नो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोचिंग. तो इलीगल हंटिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो लोग कुछ जानवरों को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए जब हंट करते हैं तो उस एक्टिविटी को बोला जाता है पोचिंग. Deforestation leads to increase in temperature and pollution level on the earth. This disturbs the water cycle and reduces rainfall. The outcome is the drought. इसी की वजह से आपकी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो पूरा का पूरा तालमेल होता है वो भी बिगड़ जाता है. गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो रेन होती है वो कम हो जाती है. रेन कम हो जाती है तो उसके बाद जो सूखापन होता है, ड्रॉट की स्थिति होती है, वो उत्पन्न हो जाती है. Deforestation results in soil erosion. You have already learnt in class 7 that trees prevent soil erosion. Roots of trees bind the soil particles together, preventing them from blowing away by wind or water. Soil erosion removes the top layer of the soil that contains the fertile humus. Removal of top layer thus makes the soil less fertile as the lower layers of soil contain less humus. If this goes on, the fertile land gets converted into a desert. The process of conversion of fertile land into a desert is called desertification. सॉइल इरोजन जो होता है वो भी आपके पेड़ कटने की वजह से होता है, क्योंकि जब एक जगह पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनकी रूट्स सॉइल को एक जगह पर बाइंड करके रखती है जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता. जैसे ही आप इन पेड़ को काट देते हैं इनकी जड़ें हट जाती हैं, जो वहां का सॉइल बाइंड अप रहता है, एक जगह पर रहता है, वो पेड़ के कटने से लूजन अप हो जाता है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है. अब सॉइल इरोजन का ये रिजल्ट होता है, जैसे ही आपका सॉइल लूजन हो जाता है वो लेस फर्टाइल हो जाता है और अच्छी खासी जो जमीन होती है वो बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पे एक फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे आप किसी भी टाइप का कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसको बोला जाता है desertification. Do you know habitat destruction is one of the most important factors that threatens wildlife today. Habitat destruction जो होता है, जैसे कि आप किसी फॉरेस्ट को जब कट डाउन कर देते हैं तो वहां पे जो एनिमल्स बहुत टाइम से रह चुके होते हैं, अपना घर बना चुके होते हैं, उनका हैबिटेट भी आप छीन लेते हैं. तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी लाइफ को थ्रेटन कर रहा है.
As a result of deforestation, groundwater level also gets lowered. The capacity of soil to hold water is reduced. The movement of water from the soil surface into the ground slows down. In the absence of trees and their root system, water is not able to seep into the soil. As a result, in rainy season, water just flows over the soil, bringing about floods. The above mentioned consequences of deforestation affect the population of organisms found in that area and the types of crops grown here. तो आपका जब deforestation होता है तो ग्राउंड वाटर में जो आपका वाटर का लेवल होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सॉइल आपकी एक जगह बाइंड अप नहीं होती है, लूजन हो जाती है. एज अ रिजल्ट जब बारिश होती है तो ये पानी सॉइल के ऊपर से ही बहकर कहीं और निकल जाता है, ग्राउंड के अंदर नहीं आ पाता है. इसका रिजल्ट ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है. Do you know, Cherrapunji in Meghalaya provides a good example of devastating effect of deforestation. This area was known to have the highest rainfall in the world. Large-scale exploitation of forests left these hills barren. Now, this area has low and erratic rainfall, altered climate pattern and fractured forest. तो आपका जो मेघालय वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे चेरापूंजी करके एक जगह है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ही अच्छी लेवल की बारिश हुआ करती थी. लेकिन अब इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है कि वहाँ का पूरा क्लाइमेटिक पैटर्न बिगड़ चुका है. इराटिक रेनफॉल यानी कि बहुत ही कम रेनफॉल होती है, मुश्किल से कभी होती है तो होती है, नहीं तो वहाँ पर बारिश देखने को मिलती ही नहीं है. अच्छी खासी जो वहाँ की फर्टाइल लैंड थी वो भी अब बैरेन हो चुकी है, यानी कि बंजर हो चुकी है, कोई भी क्रॉप वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है. Forest conservation and management. Conservation of forests is required to ensure regular supply of forest product along with maintaining ecological balance. This can be achieved by adopting the following ways. Forest resources should be used rationally, economically and measurably. Alternative sources of fuel wood should be explored. Biogas is a good alternative to fuel wood. Preventing overgrazing. Grazing by cattle should be regulated. Protection from fire pests and diseases. Forests should be protected from fire by putting restriction on smokers, campers for burning debris, and from pests and diseases by spraying pesticides and fungicides. Felling of tree should be made punishable activity. Government of India has put complete restriction on cutting trees. Afforestation. Replanting trees in forests is called afforestation. Central and state governments have taken up several afforestation programs to restore the forest cover and forest wealth. General awareness. It is necessary to create a general awareness in the people for forest conservation through different media and mass movement. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अफॉरेस्टेशन करें, जो आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट रिजर्व है उसको आप कंजर्व करके रखें. इसके कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपको जितनी भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपको मिलती हैं, किसी भी फॉर्म में मिलती हैं, उसका इकोनॉमिकली यूज़ करें, ज़्यादा उसको वेस्ट ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें. उसके अलावा आपकी ऑल्टरनेटिव जो आपके जैसे बायोगैस यूज़ है, लकड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह बायोगैस का यूज़ करें. जितना कम लकड़ी यूज़ होगी उतना आपको कम पेड़ काटना पड़ेगा, उतने ज़्यादा पेड़ होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी जो एटमॉस्फेयर में है वो कम रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी उससे कम हो जाएगी. सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो सकता है, बाढ़ भी कंट्रोल हो सकती है. तो आप लकड़ियों की जगह बायोगैस का यूज करिए. उसके अलावा अलग अलग टाइप का, जैसे ओवर ग्रेजिंग होता है, किसी के पास भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, वो ऐसे ही फील्ड पे उनको छोड़ देते हैं चरने के लिए. ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा आपके प्लांट्स कट डाउन हो जाते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा फर्टाइल लैंड बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ओवर ग्रेजिंग ना करवाइए, जितना जरूरत है उतना ही पैच ऑफ लैंड पे आप अपने जितने भी चारा जिसको खिलाना है आपको, उतनी ही लैंड पर आप चारा करवाइए. उसके अलावा अफॉरेस्टेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है. इन सारी एक्टिविटीज के बाद आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ आप लगाइए, जिससे आपका बहुत सारी जो आपका डिफॉरेस्टेशन है वो कंजर्व हो सकता है. उसके बाद आपकी अवेयरनेस फैलाइए, जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है इस चीज के बारे में बताइए कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है और पेड़ों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है. Do you know Chipko movement in Garhwal region of Uttarakhand started by Sundar Lal Bahuguna helped in saving trees in the area. The women of village Reni embraced the trees and prevented contractors from cutting the
ट्रीज। तो गढ़वाल रीजन जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत मदद करी थी चिपको मूवमेंट से, जहां पे हर कोई, जो जितनी औरतें हैं, जितने भी लोग थे, वो पेड़ों से चिपक गए थे, हग कर लिया था, इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट है। और इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाया था। Save Silent Valley Society in Kerala saved innumerable rare species of plants and animals found in the Silent Valley। तो आपके केरला में भी एक साइलेंट वैली है, जहां के लोगों ने बहुत ही एक रेयर स्पीशीज का प्लांट है उसको बहुत सालों से प्रोटेक्ट करके कंजर्व किया हुआ है। Recycling of paper as a step to reduce deforestation. Paper is made from the pulp of trees. It takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. The consumption of paper has grown many-fold over the years. Used paper can be recycled 5 to 7 times, thus saving many trees. We should not waste paper. If each one of us saves 1 or 2 sheets of paper every day, we can save many trees from destruction over a period of 1 year. Paper can be recycled 5 to 7 times and reused. Thus, we can save trees as well as the energy and water used in paper manufacturing. तो आपका जो पेपर का यूज है, कंजम्पशन है, वो पीछे के टाइम पे बहुत ही ज्यादा टाइम्स बढ़ चुका है। अब आपका जो पेपर होता है, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर करीबन 5 से 7 बार आप उसको रीयूज कर सकते हैं रिसाइकल करके, लेकिन लोग उसको फेंक देते हैं। उसके बाद नए पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पल्प लगता है, उसके लिए बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ता है। करीबन एक शीट ऑफ पेपर को काटने के लिए 1 टन पेड़ तक हमारा काटना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, पानी लगता है। तो आपकी ओवरऑल ट्रीज तो कट ही रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज भी कम हो रही हैं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम सब जितने भी हैं पेपर को जितना हो सके उतना रिसाइकिल करके रीयूज करें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा पेड़ कंजर्व हो सके। Do it. Answer these questions. Number 1, define the terms deforestation and afforestation. Second, what is conservation? Third, what causes desertification? तो ये 3 कुछ questions हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसके आंसर्स आपको खुद से देने। Wildlife conservation. Wildlife basically refers to organisms living in their natural habitat, like tigers and elephants in dense forests, crocodiles and alligators in natural water bodies, and trees and shrubs in जंगल। वाइल्ड लाइफ का बेसिकली मतलब ये होता है जहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो टाइगर्स और लायंस होते हैं वो जंगल्स में रहते हैं, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स जैसे नेचुरल वाटर बॉडीज में रहते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, वो जंगल से पाए जाते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। Causes of wildlife depletion. Wildlife is a valuable biological resource. The various factors responsible for wildlife destruction and depletion are habitat loss. The destruction of natural habitats of animals by deforestation disturbs the life, growth and reproducing time of wild एनिमल्स। तो आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि खराब होता जा रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस। आप पेड़ों को काट देते हैं, वहां पे जो रहने वाले जो जानवर होते हैं वो अपना घर खो देते हैं, उनको माइग्रेट करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन साइकिल स्लो डाउन हो जाती है। तो इसकी वजह से इनकी जो स्पीशीज होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। Indiscriminate hunting. Indiscriminate killing and poaching of wild animals for food, skin, fur, horn, tusk, etc. तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, अंधाधुंध तरीके से जानवरों की हंटिंग हो रही है। खाने के लिए हो रही है, कपड़ों के लिए हो रही है, फर के लिए हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पोचिंग जो अभी हमने पढ़ा था इलीगल हंटिंग होती है, यानी कि अगर पकड़े गए आप तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हंटिंग हो रही है, उसकी वजह से भी ये जो रेयर स्पीशीज होती है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। Pollution. Air, water and soil pollution is also responsible for death and elimination of sensitive wild species. इतना ज़्यादा pollution होता जा रहा है, आपके पेड़ कम हो रहे हैं, गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं। तो आपके जितने भी जानवर आपके वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज में रहते हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। जो एयर से जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से मरते जा रहे हैं। तो ये कुछ 3 से 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होता जा रहा है। Activity 2. All over the world, animals are hunted for various purposes.
find out the various reasons for killing various animals and tabulate them. Animal hunted for country. तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके जो एनिमल हंटिंग है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जोरों शोरों से होती है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एनिमल्स को डिफरेंट रीजंस के लिए किल करा जाता है, हंट करा जाता है। तो आपको अलग अलग कंट्रीज, कम से कम 5-6 कंट्रीज आपको ऐसी देखनी है जहां पे अलग अलग एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए हंट करा जाता है और आपको यहां पर उसे लिख देना है। There are many governmental and non-governmental organizations, NGOs, working to protect, preserve and conserve the environment. तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को खत्म करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज, ये सबका एस्टैब्लिशमेंट भी हो रखा है ताकि वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए और ज्यादा मोटिवेट करा जाए। Red Data Book. The IUCN has published several volumes of the Red Data Book or Red List, which carries information on plants and animals that have become extinct or facing the danger of extinction. It categorizes those under threat into critical, endangered, vulnerable, rare, and in detriment. The critical species face the gravest threat. Endangered species face a threat in the near future. Vulnerable species face a threat in the longer term future. While rare species are at risk but not yet endangered or vulnerable. Indeterminate species are those about which there is insufficient information. The first 4 volumes of the book carry information about different types of animals, while the 5th volume is about प्लांट्स। तो आपका जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपकी अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होता है, प्लांट्स होते हैं, उनको 5 पार्ट्स में इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। वो है आपके एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर एंड इन डेट्रीमेंट और क्रिटिकल। तो आपके जितने भी एनिमल्स जो बिल्कुल आपके ऐसी स्थिति में है कि अब कभी ना कभी भी उसकी जो स्पीशीज है वो खत्म होने वाली है, वो क्रिटिकल में आ जाती हैं। फिर आपका वल्नरेबल आता है, उससे पहले आपका एंडेंजर्ड आता है। एंडेंजर्ड वो स्पीशीज होती हैं जो नियर फ्यूचर में उनकी खत्म होने के चांसेस होते हैं। देन कम्स योर वल्नरेबल, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म फ्यूचर होता है लेकिन उनका भी जो एंड होता है वो नियर फ्यूचर में तय होता है या फिर होने वाला होता है। देन कम्स योर रेयर। रेयर वो होता है जिसकी स्पीशीज अभी काफी ज्यादा मात्रा में है लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से वो थोड़े टाइम के बाद ही सही लेकिन उसकी स्पीशीज खत्म हो सकती है। देन कम्स योर इनडेटरमिनेट। इनडेटरमिनेट आपकी वो स्पीशीज होती है जो कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट होती है, कंप्लीटली आपके पास नहीं होती है। About India. India is one of the 19 mega biodiversity countries in the world. That means it is one of the 19 countries with the greatest biodiversity. The Eastern Himalayas and the Western Ghats are the richest in biodiversity in India. However, our plants and animals are under threat too. According to the Botanical Survey of India, which has prepared 3 volumes of a book on endangered plants, 3,000 of our plant species are under threat. As for animals, 20% of our mammals and 5% of our birds are threatened. तो इंडिया जो है 19 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं आपकी, उसमें से एक आती है। इसका मतलब कि हमारी लैंड में, इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसके बावजूद भी हमारी इंडिया में जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग बहुत हाई परसेंटेज ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज एंड प्लांट्स की स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे एंडेंजर होती जा रही है, वल्नरेबल है। How do we know about the status of our plants and animals? The Forest Survey of India conducts surveys of our forest resources. It uses satellite pictures and ground surveys in which different parts of forests are surveyed and their condition studied. The Botanical Survey of India has the job of keeping track of the plant species in the country, while the Zoological Survey of India keeps track of animals. Many different methods are used for collecting and collating data. For example, an All India Wild Animals Census is conducted every 4 years to collect data about the number of individuals of different species. How are the numbers counted? Different methods are used for different animals. In the case of tigers, for example, pug marks are counted to figure out the number of tigers in a forest.
Pug marks have individual characteristics like size and the length of stride. तो आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कौन से क्रिटिकल हैं, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से वल्नरेबल हैं, इनको काउंट करने के अलग अलग तरीके हैं. जो आपका फॉरेस्ट सर्वे है हमारी कंट्री का, वो अलग अलग टाइप के सर्वे रिपोर्ट्स निकालता है, सैटेलाइट्स के थ्रू, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स के थ्रू. जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स की जो स्पीशीज होती है उनके सर्वेस को कंडक्ट करता है, उनके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है. और जो आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको देखता है कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है या कौन सी कैटेगरी में आती है. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. जो टाइगर्स होते हैं लेट्स सपोज, तो उनके जो पग होते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं, पग मार्क्स होते हैं, उनको काउंट करते हुए देखते हैं कि कितने स्पीशीज या कितने टाइगर्स एक जंगल्स में प्रेजेंट है. Extinct, EX. A group is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died. Dinosaurs became extinct as they could not adapt to climatic changes. तो extinct का मतलब होता है जब किसी भी स्पीशीज का जो लास्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो मर चुका होता है, उसके बाद उसकी स्पीशीज का कोई भी एक एनिमल जिंदा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे एक टाइम पे, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जा रही थी वो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे. एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW. A group is extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity, or as a naturalized population or populations, well outside the past range. A group is presumed extinct in the wild when exhaustive surveys is known and or expected habitat at appropriate times, diurnal season, annual, and throughout its historical range have failed to record an individual. Surveys should be over a time frame appropriate to the animal's life cycle and the form. तो extinct in the wild का मतलब होता है जब बहुत लंबे टाइम के लिए आप सर्वेस कर रहे होते हैं एंड सर्वे में एक भी सिंगल रिकॉर्ड उस स्पीशीज का, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उस डाययूर्नल यानी कि साल में 2 बार या फिर एनुअल साल में 1 बार जब इनको रिकॉर्ड करा जाता है तो इनकी स्पीशीज का एक भी ऑर्गेनिज्म रिकॉर्ड नहीं हो पाता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी से कि वो चीज वाइल्ड लाइफ में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. Critically endangered, CR. A group is critically endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future. Critically extinct, CR. Critically endangered का मतलब होता है कि जब कोई species on the verge of extinction होती है, यानी कि near future में कभी भी उनकी species का last organism खत्म हो सकता है. That's when we say कि वो species या वो organism critically endangered है. Endangered, EN. A group is endangered when it is not critically endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future. Examples of endangered animals are Indian rhinoceros, Asiatic lions, crocodiles and blue whales. तो एक ग्रुप endangered तब होता है जब खत्म नहीं हुआ होता है लेकिन बहुत हाई चांसेस होते हैं कि नियर फ्यूचर में उनकी स्पीशीज खत्म हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो एशियाटिक लायंस हैं, आपके क्रोकोडाइल्स हैं, ब्लू वेल है, दे आर एंडेंजर्ड, यानी कि पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस है कि नियर फ्यूचर में इनकी स्पीशीज खत्म हो सकती है. Vulnerable, VU. A group is vulnerable when it is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium term future. Chinkara deer, black buck and golden langur are examples of vulnerable species. तो आपके vulnerable species वो होते हैं जो critically endangered नहीं होते हैं, endangered भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत high risk होता है कि वाइल्ड लाइफ में इनका extinction possible है. For example आपके black buck, golden langur, they are vulnerable. Lower risk, LR. A group is lower risk when it has been evaluated and does not satisfy the criteria for any of the categories: critically endangered, endangered or vulnerable. The groups included in the lower risk category can be separated into 3 subcategories. 1. Conservation dependent, CD. 2. Near threatened, NT. 3. Least concern, LC. तो कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक स्पीशीज का जो ग्रुप होता है वो लोअर रिस्क पे तब होता है जब वो 3 कैटेगरीज में नहीं आता है: क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड
एंडेंजर्ड। तो इन 3 कैटेगरीज में अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, इसका मतलब वो लोअर रिस्क पे है। डेटा डेफिशिएंट, डीडी, अ ग्रुप इज डेटा डेफिशिएंट व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू मेक अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बेस्ड ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड or population status. A group in this category may be well studied and is biologically well known, but appropriate data on abundance and or distribution is lacking. Data deficient is therefore not a category of threat or लोअर रिस्क। तो डेटा डेफिशिएंट डी में आपके वो ग्रुप आते हैं जिनकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हो चुकी होती है, उनकी बायोलॉजी पे भी अच्छी खासी रिसर्च हो चुकी होती है, और उनकी जो स्पीशीज होती है वो ना ही वल्नरेबल होती है ना ही किसी भी कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनका जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है इन स्पीशीज के बारे में वो इनसफिशिएंट होती है, यानी कि उनकी बायोलॉजी के बारे में आपको कंप्लीटली कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो डेटा इनसफिशिएंट होता है तो ना ही ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ना ही आपके लोअर रिस्क कैटेगरी में आते हैं। Not evaluated, NE. A group is not evaluated when it has not yet been assessed against the criteria. तो आपका not evaluated NE में वो species आते हैं जिनके बारे में कोई भी evaluation अब तक हुई नहीं होती है। Do you know Nilgiri Biosphere Reserve was the first reserve established in India. It spreads over Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Sundarbans, Kaziranga, Nanda Devi, Gulf of Mannar and Simlipal are some other biosphere reserves of India. तो आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पहले यही रिजर्व इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। ये आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में पूरी तरीके से फैला हुआ है। उसके अलावा आपके सुंदरबंस, काजीरंगा, नंदा देवी, कुछ और ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया में पाए जाते हैं। Protected areas. Protected areas are undisturbed habitats for wildlife. These include national parks, sanctuaries and biosphere reserves. तो protected areas में आपके कुछ ऐसे areas आते हैं जैसे national parks, sanctuaries, biosphere reserves, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग species of plants और animals को एक जगह पे इकट्ठा करके conserve किया हुआ है ताकि वो खत्म ना हो। National parks. A national park is a protected land area preserved in natural condition to provide natural habitat to wildlife. Forestry, grazing, cultivation and free entry of people are not allowed in national parks. Jim Corbett National Park in Uttarakhand was the first national park established in India in 1936 CE. As of 2015, there are 102 national parks in India. तो national parks आपके वो जगह होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, लेकिन इसको बनाया नहीं होता है गवर्नमेंट ने। ये नेचुरल हैबिटेट होता है जिसको एज इट इज नेचुरल फॉर्म में ही वाइल्ड लाइफ का जिस फॉर्म में होता है प्रोटेक्ट करके रखा होता है। यहाँ पर ग्रेजिंग, नॉर्मल लोगों का फ्री एंट्री और अलग अलग टाइप की जो हंटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वो सबसे पहले इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1936 में, और 2015 तक आते आते अराउंड 102 नेशनल पार्क्स इंडिया में स्टैब्लिश हो चुके थे। Wildlife sanctuaries. A sanctuary is a protected land area reserved for the conservation of wild animals, birds and plants. Hunting is strictly prohibited there. However, private ownership rights for collecting minor forest products, harvesting of timber and cultivation are granted so long as they do not interfere with life of wild animals. In India, there are 515 wildlife sanctuaries. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी वो प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल नेशनल पार्क्स की तरह घुसना फ्री में अलाउड नहीं है, किसी एनिमल को हंट करना अलाउड नहीं है, किसी पेड़ वगैरह को काटना भी अलाउड नहीं है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में टिम्बर का कल्टिवेशन या फिर माइनर जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको लेना कुछ लोगों को अलाउड होता है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इंटरफेयरिंग बिटवीन द वाइल्ड लाइफ। जो आपकी वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बिना डिस्टर्ब करे हुए आपको ये एक्टिविटीज करनी होती हैं। Biosphere reserves. A biosphere reserve is a specified land area in which multiple use of land is permitted for preserving biodiversity. It is divided into 3 zones for different activities. Core zone where no human activity is permitted, buffer zone where limited human activity is allowed, transition zone where several human activities are
परमिटेड। तो बायोस्फीयर आपका वो लैंड एरिया होता है जहां पर आपकी मल्टीपल यूजेस होते हैं लैंड के, और अलग अलग तरीके की आपको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशंस दी होती हैं। 3 पार्ट्स में है। पहला है आपका कोर जोन, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी ह्यूमन यहाँ पे किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं कर सकता। फिर आपकी बफर जोन आती है, बफर जोन में लिमिटेड आपकी एक्टिविटीज अलाउड होती है ह्यूमंस की। उसके बाद आपका ट्रांजिशन जोन आता है, इस लैंड के एरिया में बायोस्फीयर का ये जो पार्ट होता है वहां पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जाती है। एक्टिविटी 3, find out the number and names of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your state and country. Collect the photographs of endangered, vulnerable and rare species of India. How many of them belong to your state? तो हमारी कंट्री में जितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने आपके बायोस्फेयर्स हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में, आपको वो लिखना है। उसके बाद जो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, जो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेयर है, उनके नाम आपको लिखने हैं पूरी कंट्री में अलग अलग स्टेट से, और आपको एंड में ये बताना है कि आपके स्टेट्स में से कौन सी एनिमल्स या कौन सी वो स्पीशीज पाई जाती हैं। There are 243 biosphere reserves in the world, including 14 in India. A biosphere reserve helps in maintaining the biodiversity as well as the culture of that area. तो पूरी all over the globe, around the world, 243 biosphere reserves हैं, उसमें से 14 biosphere reserves इंडिया में हैं। A biosphere reserve may also contain other protected areas like national parks and wildlife sanctuaries. For example, Pachmarhi Biosphere Reserve includes Satpura National Park and 2 wildlife sanctuaries, Bori and पचमढ़ी। तो आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उसमें आपकी अलग अलग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो पचमढ़ी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आपका नेशनल पार्क और आपकी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी पाई जाती हैं, इंक्लूडेड हैं। Animal conservation programs in India. There are a large number of protected areas in India managed by the government. In wildlife sanctuaries and national parks, cutting down of trees and hunting or capturing of animals is strictly prohibited. The Government of India has also enacted the Forest Conservation Act to conserve the natural forests. Besides wildlife sanctuaries and national parks, animal-specific reserves have also been launched by the Government of India. For example, Project Tiger, Project Elephant, Project Rhino and Project Crocodile have been launched to protect tigers, elephants, rhino and crocodiles respectively. तो बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के भी होते हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो एनिमल स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया। ये स्पेसिफिकली उन्हीं एनिमल्स की स्पीशीज को बचाने के लिए ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर. It is estimated that India had about 40,000 tigers in 1900. The number had declined to 1,800 in 1972. The Project Tiger program was launched in 1973 to ensure the maintenance of available population of tigers in India and increase their numbers. At present, there are about 3,800 tigers found in India in 27 tiger reserves. तो प्रोजेक्ट टाइगर ये बोला जाता है कि 1900 में जब हम बात करें तो करीबन 40,000 से भी ज्यादा टाइगर्स हमारे देश में थे, लेकिन धीरे धीरे 1972 तक आते आते ये केवल 1800 बच गए थे, 40,000 से सीधे 1800 पे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया ताकि इनको जितने बचे हैं उनको सेव किया जाए और उसके बाद उस नंबर को इंक्रीज करा जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला उसके बाद आपके जो टाइगर रिजर्व्स थे वो ऑलमोस्ट उसके अंदर 3,800 टाइगर्स तक इंक्रीज हो चुके थे। Project Elephant. The Project Elephant was launched in 1991 to 1992 to assist states having free-ranging population of wild animals and to ensure long-term survival of identified population of elephants in their natural habitats. उसके बाद आपका Project Elephant जो कि 1991 से 92 तक आपका लॉन्च हुआ था, जहां पर भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के जितने भी एलिफेंट्स थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और कंजर्व किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। Project Rhino. It was launched in 1987 in Kaziranga Wildlife Sanctuary in Assam to save the one-horned rhinos from extinction. It covers an area of 430 km, which is the natural home of the dwindling rhino. उसके बाद आपका प्रोजेक्ट राइनो आया था जो कि असम के काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी वन हॉर्न यानी कि जिसके एक सींग होते हैं वैसे राइनोसेरॉस को कंजर्व किया जाए।
प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। The crocodile breeding project initially started in Orissa and then extended to several other states in 1975. The major objective of the project is to protect the three endangered species of crocodiles, Gavialis gangeticus, Crocodilus palustris and Crocodilus porosus. फिर आपका आया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो कि आपका इनिशियली ओडिशा में लॉन्च करा गया था। 3 क्रोकोडाइल की अलग अलग स्पीशीज है, एक है आपकी गैविलियस गैंजेटिकस, फिर आप क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रिस एंड क्रोकोडाइलस पोरोसस। इन 3 क्रोकोडाइल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एंडेंजर्ड हो चुकी थी, तो इनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किया गया था। एक्टिविटी 4, try to find out the non-governmental organizations, NGOs, that are contributing to the conservation of our natural resources, protection of wild animals and conservation of forests. What is WWF? Find out its role in wildlife मैनेजमेंट। तो आपको जितनी भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग लेवल पे स्पीशीज को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, आपको उनके नाम लिखने हैं, किस तरफ से वो काम कर रही है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करनी है वो लिखना है। और WWF इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको वो बताना है। Migration. The process of a bird or other animal moving from one place to another according to the season is called migration. In other words, when a bird or other animals moves from one place to another in one season and returns in different season, it is called migration. Migration of birds or other animals is an adaptation to escape the harsh and cold conditions of their normal habitat in winter so as to survive. Let us discuss the migration of birds. तो migration आपका वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी बर्ड या फिर कोई भी दूसरा एनिमल, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है और वापस से जब क्लाइमेटिक कंडीशंस उस जगह पे ठीक हो जाती है तो दे माइग्रेट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। When the winter sets in cold regions of the earth, the climate becomes extremely cold in those regions. The birds which normally live in these regions migrate, fly off to far-flung warmer places on earth to escape the extremely cold winter climate and survive. See figure. And when the winter season is over, these birds fly back to their original habitats in the cold regions. तो आपकी जब अर्थ पे जिन पार्ट्स में आपकी सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं वो रीजन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, एक्सट्रीमली अनबेरेबल ठंड वहाँ पे पड़ने लग जाती है। तो इन लोकेशन से जो कुछ बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं, यानी कि फ्लाई ऑफ कर जाती हैं कुछ ऐसी जगहों पर अर्थ की जहाँ पे थोड़ा गर्म माहौल होता है, थोड़ी गर्माहट होती है, ताकि वो सर्वाइव कर पाएं। The birds which move from very cold regions to warmer regions in winter and go back after the winter is over are called migratory birds. Migratory birds fly to far away places every year during a particular time because of climatic changes. The purpose of migration of birds is to survive by escaping the extremely cold conditions of their natural habitat and also for breeding by laying eggs. तो ऐसी जो आपकी बर्ड्स होती हैं जो एक्सट्रीमली ठंड वाली जगहों से माइग्रेट करती हैं थोड़ी गर्माहट वाली जगह पे, और जैसे ही फिर वहां पे आपका कंडीशन ठीक हो जाती है उनकी ओरिजिनल जगह पे, तो वापस अपने पुराने हैबिटेट में चली जाती हैं। ऐसे बर्ड्स का नाम होता है माइग्रेटरी बर्ड्स, और इनका माइग्रेट करने का एक ही रीजन होता है ताकि इतनी बुरी ठंड जो होती है अनबेरेबल उसमें ये सर्वाइव कर पाएं और रिप्रोड्यूस भी कर पाएं, अपने एग्स को भी ले कर पाएं। India is one of the destinations of many of the migratory birds coming from the very cold regions of the earth. One of the most common migratory bird which comes to India every year for a few months is the Siberian crane. The normal habitat of Siberian crane is Siberia, which is a very cold place. When winter sets in Siberia and it gets extremely cold, the Siberian crane flies thousands of kilometers and comes to warmer places in India such as Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana, some wetlands of northeast and some other parts of India. The Siberian cranes stay in the warmer places in India for a few months. The Siberian cranes fly back to Siberia when the winter ends there and climate becomes favorable. We will now discuss the recycling of
पेपर। तो आपकी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो इंडिया एक बहुत ही अच्छा हॉटस्पॉट है ऐसी बर्ड्स के लिए जिनको माइग्रेट करना होता है। उसकी एक सबसे ज़्यादा फेमस बर्ड जो हर साल यहाँ पर माइग्रेट करती है वो है साइबेरियन क्रेन। ये ओरिजिनली साइबेरिया से हेल करती हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ जाती है। तो जब भी वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये साइबेरियन क्रेज इंडिया के हरियाणा वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में माइग्रेट कर जाती हैं। Legal provisions for conservation of biodiversity. In our country, several legal provision or acts related to conservation of wildlife and forests have been enacted by the government. These are Forest Conservation Act and Wildlife Protection Act. तो वाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के टाइम टू टाइम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट होता है। तो इन सारे एक्ट्स के तहत अलग अलग मेजर्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है। Do you know one of the most common migratory bird which comes to India every year for a few months is the Siberian crane. तो हर साल साइबेरियन क्रेन कुछ महीनों के लिए, जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो इंडिया में हर साल माइग्रेट करती है। Forest Conservation Act. This act empowers government and forest department to create and manage reserved forests, protected forests and village forests, to conserve forest as a natural heritage, to control movement of forest produce, to control and regulate cattle grazing in forest. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो आपके विलेज में फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, उनको कंजर्व करती है। जितना आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, अगर अनलिमिटेड होता है तो इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल करने का काम भी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट कर सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. The objectives of this act are prohibition of hunting of listed threatened species, setting up and management of national parks, sanctuaries and biosphere reserves, control and management of captive breeding, protection of specific plants and natural habitats of animals. तो आपका जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसके तहत गवर्नमेंट जो हंटिंग होती है उसको कंट्रोल कर सकती है। इलीगल हंटिंग का आपको डेफिनेशन दे सकती है, पोचिंग के अगेंस्ट आपको जेल भी इसके तहत हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग टाइप की कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, वो भी इसी एक्ट के तहत करा जाता है। डू इट, आंसर दीज क्वेश्चंस। Number 1, define wildlife. Second, give one difference between endangered and vulnerable species. 3, what do you mean by Red Data Book? 4, name the first national park of India. When was it established? Number 5, what are the 3 different regions of a biosphere reserve? Number 6, name the international body responsible for wildlife conservation. Number 7, state the object of Project Tiger. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इसके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। Keywords: biodiversity, all forms of life existing on the earth. Habitat, usual, natural place and condition for growth of plants and animals species. Conservation, wise use of natural resources with an aim to preserve and protect them. National parks, strictly reserved areas for conservation of wildlife. Zoological park, a park on an enclosure in which animals are kept for public exhibition. Botanical garden, a garden where we can conserve rare and threatened प्लांट्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो आपके नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका पूरा कलेक्शन होता है। हैबिटेट आपकी वो जगह होती है जहां पर आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं। हमने वल्नरेबल चीज़ों के बारे में पढ़ा, कौन सी वल्नरेबल स्पीशीज आपकी होती हैं। इसके अलावा आपके नेशनल पार्क्स होते हैं जहां पे आपके नेचुरल फॉर्म में ही उस एरिया को प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है। Points to remember. Biodiversity refers to the variety of organisms living in a given area. Organisms exhibit tremendous diversity in their shapes, sizes, habitats, etc. Forests fulfill many of our needs and are considered our national wealth. Plants and animals found in a specific area are called flora and fauna, respectively, of that area. Clearing forests and using that land for other purposes is called deforestation. The preservation and careful management of plants and animals in order to prevent them from extinction is termed as conservation of biodiversity. Reforestation is the restocking of destroyed forests by planting new plants. The species of plants and animals that no longer exist anywhere on earth are called extinct species. Endemic species are those species of plants and animals that are confined to specific areas.
Endangered species are those species of plants and animals that are facing the danger of extinction. Wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves are the areas meant for conservation and preservation of forests and wild animals. तो बायोडाइवर्सिटी आपका वो एरिया होता है जहां पे आपके नेचुरल ऑर्गेनिजम्स उनके नेचुरल फॉर्म में होते हैं. हैबिटेट आपका वही एरिया होता है जहां पे यही पूरी जो बायोडाइवर्सिटी होती है अपनी नेचुरल स्फीयर में रहती है. बहुत सारी टाइप की आपकी स्पीशीज होती हैं जो आपके डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपकी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.